अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव किया, दूसरे में हम लोगों ने थोड़ा मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट बॉल एंड बाउल सिस्टम। इन दिस टॉपिक वी आल्सो हैव टू कवर दैट acceleration is directly proportional to the displacement but always directed toward the mean position. In very first topic, that is about mass spring system, we have proved this, that how this acceleration is directly proportional to the displacement, and this negative sign showing that acceleration is always directed toward the mean position. So here we have another example, that is ball bowl system. So in this example we also have to prove what the simple harmonic motion. So in this chapter we have three examples to prove this motion, that is simple harmonic motion. Very first we have discussed, that was spring mass system. Now we are discussing currently, that is ball and bowl system. The next topic would be simple harmonic motion, that is also the proof of that is simple pendulum, and that is also the proof of simple harmonic motion. Now currently I am discussing about ball and bowl system. Okay, so first of all we just move to the diagram and see what is this. So this is a bowl. I try my best to draw a bowl, but I think so. Okay, this is a bowl and this is somehow a ball. ठीक है, मैंने एक बाउल ड्रा किया है, ये देख लें बाल है, इसके अंदर स्टार में मैंने यहाँ रखी है, फिर यहाँ भी इसको प्लेस किया, यहाँ भी प्लेस किया, वो तो साथ साथ चल के देखेंगे. So but currently this is a bowl and this is a ball that is placed inside of it. So here the things we have to cover, the terms we have to cover here is about mean position, extreme position, restoring forces, inertia, net force and frictions. So we have to focus on these terms during its motion. First of all, when we place a ball in a bowl, so where it would be placed, if you place a ball in a bowl, it will move toward this bottom place. ठीक है, it will move toward this bottom place. It will, देखें ना, कोई भी जब मतलब बाउल के अंदर अगर मैंने बॉल को ड्रॉप करना है तो उसके सेंटर में ही जाएगी. देखें, बाउल के अंदर मैंने बॉल को ड्रॉप किया, उसके सेंटर में चली गई है. अब इस पॉइंट के ऊपर ये होती है रेस्ट के ऊपर. क्यों जी रेस्ट के ऊपर क्यों है? कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले इसको मैं बोलता हूँ मीन पोजीशन. ठीक है, इसका नाम होता है मीन पोजीशन. ये सेंटर ऑफ द बाउल होता है. नाम इस पोजीशन को मैंने ओ से डिनोट किया गया है, होती है मीन पोजीशन है. और यहाँ जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस होते हैं वो इक्वल टू होता है 0. मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम क्या है? 0 है. अब यहाँ फोर्सेस कितनी लग रही हैं देखें, एक तो ऊपर से नीचे इसका जो लग रहा है वो वेट है, डाउनवर्ड एक कर रहा है ना, वेट, डेट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. यही होता है ना, वेट डाउनवर्ड एक कर है. अपवर्ड क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है. आर से इसको मैं डिनोट कर देता हूँ. याद है ना, फ्रिक्शन में पढ़ा था, फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू एम म्यू आर पढ़ा था. ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थी तो फोर्स फ्रिक्शन होती थी. सो मैं इसको समहाउ वेट के इक्विवेलेंट ले रहा हूँ. सो दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज द फोर्स ऑफ वेट, एंड टू बैलेंस इट reactional force that is acting in opposite direction, that is the force we named as normal reaction force. So here the sum of both the forces is equivalent to 0. So the ball is at rest. So now if I move this ball from its mean position to point A, in other words I will move it from its mean position to extreme position. This position is called extreme position. Okay, so this is extreme position. So now when I release it, देखें ना, मैंने बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ ले आया हूँ. अब यहाँ मैं इसको पकड़ूँ, जैसे इसको रिलीज़ करूँगा, it will move toward the central point, that is the point O, that is the mean position, but doesn't stop at this point. It will acquire a new position, it will move toward the new point, new position, that is called extreme position B. That is also an extreme position, and I am denoting this position by a symbol B. So this position is denoted by symbol B. And now, so how it is moving? So now let's discuss this. So at the beginning the ball was at rest, so you have cleared about this point that both sum of these both forces is equivalent to 0. So now we bring the ball from bottom point to it at high point. At that, this position is called extreme position, and whenever I release it under the action of forces, it will move from its mean position, extreme position to mean position. So which force?
This force is called restoring force. Restoring force is responsible for moving the ball from its mean extreme position to mean position. So you have discussed about restoring forces earlier lecture, that this is force that push or pull the object towards its mean position while it performing oscillatory vibratory motion. Okay, so during its motion it always be pushed from extreme position to mean position by restoring forces. But how is this possible that it doesn't stop at mean position and move toward another position? That is called extreme position. So what is the responsibility of this? This is because of inertia. Inertia of the ball move it from position O to B. This is because of inertia, and that is because of restoring forces. Restoring forces. Okay. So from extreme position A, ball will move toward the mean position B because of restoring forces. But at mean position O, the ball doesn't stop because of inertia. Inertia move it, keep it from extreme mean position to extreme position. Again, the ball doesn't stop at extreme position. It will again move from extreme to mean because of restoring. Again, doesn't stop at mean. Again, move from mean to extreme because of inertia. So this motion continues till the whole energy lost is because of friction. And where's the energy come? When I move this ball from a mean position to extreme position, I have to do work done from bringing it ball from extreme mean position to extreme position. That here stored in the form of potential energy. Whenever I release this, that potential energy converted to kinetic energy, and it will move. So it motion continues till the whole energy lost is because of friction. Friction loses the energy in the form of heat, sound, many other you know. Okay. देखें जी, फर्स्ट टाइम ये यहाँ इस पॉइंट पे आई है, सेकंड पॉइंट से जब यहाँ से वापस आना है तो यहाँ तक आना होगा, ठीक है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रिक्शन है ना. अब इसके साइड से ये बाल जब रब होके जा रहे हैं इस बाउल के साथ तो फ्रिक्शन खा रहे हैं. नेक्स्ट टाइम इसका ये यहाँ तक आना होगा और इधर से यहाँ तक आना होगा. नेक्स्ट टाइम इसने इस साइड से यहाँ तक और यहाँ तक करते करते एट द एंड ये है यहाँ आके स्टॉप हो जाएगी. बट इट्स सारी की सारी मोशन के अंदर जो हम लोगों ने चीज़ ऑब्जर्व की है, कुछ भी नहीं हुआ. बाल मीन पे था तो रेस्ट पे था. क्यों रेस्ट पे था? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी. क्यों थी जी? यहाँ ओ पे कि जो वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, नॉर्मल एक्शन फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही थी, दोनों बैलेंस हो रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन थी, कैंसिल कर रही थी एक दूसरे को. मैंने जब यहाँ से इसको यहाँ लेके आया, सो यहाँ इस पॉइंट पे ये बैलेंस नहीं था. अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेज, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट विल मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन. एक्सट्रीम से मीन को चला गया, बट मीन पे ये स्टॉप नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पास इनर्शिया है. पढ़ा था ना, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हुए ऊपर जा रहा है, बट किस फैक्टर की वजह से? इनर्शिया की वजह से. बट वहाँ फिर अगेन जब ये ऊपर जा रहा होता है ना, होता क्या है, जब बाल ऊपर जा रहे हैं इनर्शिया तो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, बट रिस्टोरिंग का काम है इसको पीछे लेके आना. विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड कम हो रही होती है. यहाँ से ये बड़ी स्पीड के साथ यहाँ तक आते हैं, बट ऊपर जा रहे हैं ना तो इसकी स्पीड कम हो रही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ होती है 50, यहाँ होती है 40, यहाँ होती है 20, यहाँ 10 और यहाँ 0, फिर दोबारा मूव करके यहाँ आता है. फिर जब इस साइड से ऊपर जा रहे होते हैं वही वाली बात होगी, यहाँ 50, 40, 30 और यहाँ फिर आगे 0. और इस तरह इसकी मोशन जो है वो कंटिन्यूस रहती है तब तक जब तक इसके पास एनर्जी होती है और वो जब तक लॉस नहीं हो जाती. ठीक है. सो यहाँ हम लोगों ने फिर यही सीखा कि देख लेना, अब यहाँ से यहाँ ये बड़ी स्पीड के साथ आता है. सो मतलब कि इस पॉइंट से एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के. ये क्या होता है? देखें, अब ना बाल को मैं अगर यहाँ से छोड़ता इस पॉइंट से तो ये कितनी स्पीड से जाता, और इधर से छोड़ देता फिर कितनी स्पीड से जाता है, एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा. तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये देखें, इसकी मीन पोजीशन ये रही और एक्सट्रीम पोजीशन ये है ना, ये इसका जो डिस्टेंस होता है, ये जो फासला है उसको हम लोग एक्स ये कहते हैं. ये बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट. अब आप खुद देख लें, अगर ये यहाँ से इसको मैं ड्रॉप करूँ और इस पॉइंट से ड्रॉप करूँ, कितना फ़र्क है. यहाँ से ये कितनी स्पीड से जाएगा और इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इसकी क्या स्पीड होगी. तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. और दूसरी बात यह कि दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. दिस नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो देख लेना मीन पोजीशन ये. अब यहाँ से यहाँ तक ही वो पहले बात कर ली कि भाई यहाँ से यहाँ तक स्पीड बड़ी तेज़ है,
जब यहाँ से ऊपर की बातें करने लग जाते हो तो रिस्टोरिंग की कोशिश होती है, इसको पीछे खींचो, इनर्शिया ऊपर जोर लगा रहा होता है। फिर एट द एंड ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं एट द एंड यहाँ जाके इनर्शिया जीरो हो जाते हैं और रिस्टोरिंग मैक्सिमम होती है, दोबारा इसको नीचे ले आती हैं। ठीक है, तो कहने की बात सारी है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है।